آج خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص بھی چلتے پھرتے اللہ الصمد اور سورہ الاخلاص کا یہ مختصر سا عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے چند منٹوں کے اندر اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو تو اللہ ایک ہی دن کے اندر اس ایک ہی دن کے عمل سے، یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ خاص اللہ والوں کا آزمودہ اور بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکات یہ ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو ناممکن ہو چکی ہے، جو صدیوں پرانی ہے، کسی جگہ سے کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہوئی، تو پھر ایک مرتبہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں۔ صرف ایک دن آج یہ عمل کر کے دیکھیں۔ چند منٹ سیکنڈ کا یہ عمل ہے، چند منٹوں کا یہ عمل ہے، کوئی گھنٹوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا یہ عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی دن کا، وہ بھی چند منٹوں کا عمل ہے۔ تو اس عمل سے اتنے زیادہ فیض و برکات ملتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ اس صمد کے اس ورد سے اس بندے کو عام لوگوں سے نکال کر خاص لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے، اور جب اللہ اس کو خاص لوگوں میں شامل فرماتا ہے پھر اس کو بے شمار فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس عمل سے اللہ اس صمد پڑھنے سے اور سورہ الاخلاص پڑھنے سے اللہ اس بندے کو کیسی مدد عطا فرماتا ہے، یہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت آئے، یعنی کہ اس کے کاروبار میں برکت آئے، وسعت پیدا ہو جائے، روزی میں اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ آج اللہ الصمد کا یہ ورد کر لے۔ انشاءاللہ دنیاوی دولت اتنی حاصل ہوتی ہے، اتنی اس بندے کو دولت ملتی ہے کہ کبھی اس کی جیب پھر دوبارہ خالی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ عمل صرف ایک دن کرنا ہے لیکن جیب آپ کی قیامت تک پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی خاص ہے، اللہ والوں کا بڑا ہی آزمودہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے مکر و فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہو اور اس سے چھٹکارا پا کر سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے میرے قلب کو سکون مل جائے، دنیا کے مکر و فریب، دھوکے سے، لوگوں کی باتوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے، ہر طرح کے نقصان پہنچانے والے لوگوں سے وہ بچ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ یا اللہ الصمد اور سورہ الاخلاص کا عمل آج کے دن لازمی کر کے دیکھے۔ عجیب فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے اس بندے کو، جو بندہ بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسا مرد ہے یا کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، جس کو سبق یاد نہیں ہوتا یا جس کو باتیں بھول جاتی ہیں یا جس کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ گھر میں رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ پانی کے اوپر دم کر کے اس بندے کو یہ اللہ الصمد والا پانی پلا دیں۔ اس آج اگر بچہ ہے تو بچے کو سبق نہیں یاد ہوتا یا بھول جانے کی عادت بیماری لگ چکی ہے، تو فوری طور پر اس کی تمام وہ یادداشت جو کھوئی تھی یا جو اس کو بھولنے کی عادت ہے، اللہ وہ ساری بھولنے کی عادت اس کی ختم فرما کر اس کو راحت اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس عمل کی جو میں بتانے لگا ہوں، ساری زندگی کی رکاوٹیں، ساری زندگی کی پریشانیاں اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج آپ نے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ نے عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر، مرد حضرات ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، یا گھر میں بیٹھ کر، یا دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، آج ہی اس عمل کو ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے، آپ کی زندگی روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے والے کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل جاتی ہے۔ کیسے؟ ذرا اس بات کے بارے میں جانیے کہ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، بے حد پسند ہیں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے دوستو عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر میں کسی بھی تنہائی والی جگہ بیٹھ جائیں اور سورہ الاخلاص کو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب سورہ الاخلاص کو پڑھ لیں تو پھر چلتے پھرتے اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اس کا ترتیب اور طریقہ کار بھی میں بتاتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ اب میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا، انشاءاللہ اب دیکھیے گا میرے مرشد کریم کا فرمان آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی دعاؤں میں برکت نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہے، ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہمارے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ہم زندگی سے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں، کاروبار بھی ٹھپ ہو چکے ہیں، زندگی بھی کا پیا بھی جام ہو چکا ہے، رکھ چکا ہے، اگر اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور اب ہر طرح کے مصائب کا حل اس عمل سے نکال لیں گے، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، جو لوگ مقروض ہیں قرضے سے ان کو نجات مل جائے گی، جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانی ختم ہو جائے گی، جن کی شادیوں کے اندر رکاوٹیں ہیں وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، جن کے باقی کسی مسئلے کے اندر رکاوٹ ہے، یا وہ لوگ جن کا کاروبار نہیں چلتا، یا وہ لوگ جن کا ویزا نہیں لگ رہا، جن کو جاب نہیں مل رہی، یہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھی ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھی ہے، اور جس نے بھی پڑھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم موسلا دھار بارش کی طرح اس کے اوپر برسا ہے، بڑے بڑے
फरिश्ते उस बंदे को झुककर सलाम करते हैं जो ये तस्बीह पढ़ता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। वैसे तो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर इंसानियत के लिए बासे हदायत, रहमत और शिफा है। कुरान मजीद की हर आयत की तलावत बासे खैर व बरकत है। उसके हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन हदीस में कुरान की बाज़ मखसूस आयतों और सूरतों के खास फजाइल बयान हुए हैं। इन्हीं खास सूरतों में से एक सूरत सूरह इखलास है। इस सूरत में अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतें, रहमतें और बेशुमार अतियात पोशीदा हैं जो इंसानों के दीनी व दुनियावी हालात और मामलात को बेहतर बनाने और सुधारने में मुअस्सिर ताकत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उन फजीलतों, रहमतों और बरकतों से बहुत से लोग नावाकिफ हैं। 4 आयात पर मुश्तमिल मुख्तसर सूरत अपने अंदर किस कदर बेशुमार फजाइल लिए हुए है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला की तौहीद का ऐसा जामा दर्स दिया गया है जो कुरान हकीम में किसी और मकाम पर नहीं दिया गया है। चनांचा तौहीद की तीनों किस्में तौहीद अलवहियत, तौहीद रबूबियत और तौहीद इस्मा व सिफात इसी एक ही सूरत में बयान हुई हैं। मोहब्बत अलही ईमान के लवाज़मात में से है और किसी भी इंसान का अकीदा तौहीद इस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक इंसान अपने खालिक हकीकी को दुनिया की हर चीज से महबूब न बना ले। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के कई ज़राए हैं जिन्हें अख्तियार करके इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकता है। उन्हीं ज़राए में एक आसान ज़रिया सूरह इखलास की मुस्तकिल मिजाजी के साथ तलावत है। जो शख्स सूरह इखलास की तलावत पर मुदावमत अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर लोगों में महबूब और मकबूल बना देता है। वो हर एक की आंख का तारा बन जाता है। चनांचा लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसे देखकर खुशी महसूस करते हैं। लोगों में मकबूलियत एक ऐसी सिफत है जिससे बहुत से लोग महरूम होते हैं। लेकिन अगर कोई दिन रात और सुबह विशाम सूरह इखलास की तलावत को मामूल बना ले तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उसे लोगों का महबूब व मकबूल तरीन इंसान बना देगा। चनांचा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदा से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों में आवाज देते हैं कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद वो जमीन में भी अल्लाह के बंदों का मकबूल और महबूब बन जाता है। यानी जब अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी के साथ शामिल हाल होगी तभी वो लोगों के दिलों में काबिल इज्जत व एहतराम इंसान बनेगा। और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का आसान तरीन तरीका सूरह इखलास की मुस्तकिल तलावत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो सूरह इखलास सेहत दर्जा मोहब्बत की वजह से अपनी हर नमाज में पढ़ता था, ये खुशखबरी सुनाई कि उन्हें खबर दो कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता है। इखलास कुरान मजीद की 112वें सूरत है जिसमें कल 4 आयात हैं। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसकी तलावत करना दर हकीकत अल्लाह की तौहीद, इसकी वाहदानियत और उसकी सिफात का इकरार है। इस सूरत को कुल हु अल्लाहु अहदुन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सूरत की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात का ऐसा जामा और नफीस बयान है जो किसी दूसरी आयत या सूरत में नहीं मिलता। ये पूरे अकीदा तौहीद को चंद अल्फाज में समूह देती है। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में तहाई कुरान पढ़ने पर कादिर है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन उस पर कादिर हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवा अल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समदु, ये सूरत इखलास तहाई कुरान के बराबर है। सहीह बुखारी। ये इस सूरत के सवाब की अजमत को जाहिर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में 1000 आयात पढ़ सकता है? किसी ने पूछा, 1000 आयात कौन पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से एक रात में सूरह कुल हुवा अल्लाहु अहदुन नहीं पढ़ सकता? एक और हदीस में है कि जो शख्स उसे पढ़ते हुए मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा और वो बार बार सूरह इखलास ही पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। नमाजों और दीगर इबादत के बाद सूरह इखलास पढ़ना दुआ की कबूलियत के लिए मुअस्सिर है। खुसूसन सुबह व शाम उसकी तलावत करना मुसीबतों और आफात से हिफाजत का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरत, ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हर नमाज में, वतर में और दीगर नवाफिल में जरूर पढ़ते थे। और हदीस में आया है कि जो शख्स सूरत इखलास को दिन में 200 बार पढ़ता है उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं, गविया उसने गुलाम आजाद किया हो, और उसे क़यामत के दिन मुजाहिदीन की तरह बुलाया जाएगा। ये अमल इंसान के दिल से हुब्ब दुनिया को खत्म करके मोहब्बत इलाही को पैदा करता है। 200 बार पढ़ने से इंसान के रिस्क में बरकत होती है, दिल की सख्ती दूर होती है और ईमान में इजाफा होता है। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें वक्त भी कम लगता है लेकिन सवाब बेपनाह है। सूरत इखलास को समझकर और इस पर गौर करके पढ़ना इंसान के ईमान और अकीदे को दरस्त करता है। ये सूरत शर्क की तमाम अक़साम से पाक है। उसकी कसरत से तलावत करने वाला अपने दिल व दिमाग में अल्लाह की अजमत को जागज़े कर लेता है, जिसके नतीजे में उसके ऐमाल में इखलास पैदा होता है। वो हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करने लगता है। ये सूरत इंसान को दुनियावी लालच, तमा और खुदगर्दी से बचाती है और उसे एक पाकीज़ा रूह और मजबूत ईमान अता करती है। सूरत इखलास
कुरान मजीद का नचोड़ और तौहीद का मरका है। उसकी तलावत, उस पर गौर व फिक्र और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना हर मुसलमान के लिए बाइस बरकत और सादत है। इसके छोटे होने पर कभी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसे अपनी रोजमर्रा की इबादत का हिस्सा बनाएं, खुसूसन दिन में 200 बार पढ़ने का मामूल बनाएं, ताकि हम दुनिया व आखिरत की भलाई और अल्लाह की रिजा हासिल कर सकें। ये 4 आयात का नूरानी तहफा दरहकीकत हमारे ईमान की मजबूती, गुनाहों की माफी और जन्नत में दाखिले का परवाना है। पहले दोस्तों, अमल कुछ इस तरह करना है कि बावजूद अदब के साथ, मोहब्बत के साथ अपने घर में किसी भी तन्हाई वाली जगह बैठ जाएं और सूरह अल इखलास को वहां बैठकर पढ़ लें, और उसके बाद जब सूरह अल इखलास को पढ़ लें तो फिर चलते फिरते अल्लाहुस समद का वर्द करें। उसका तरतीब और तरीका कार भी मैं बताता हूँ, जरा तौजा के साथ अब मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। इंशाअल्लाह अब देखिएगा मेरे मुर्शिद करीम का फरमान आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है, आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां आती हैं। तो वो लोग जिनकी दुआओं में बरकत नहीं है, वो लोग जो कहते हैं हमारी दुआओं की कबूलियत नहीं है, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हम जिंदगी से मायूसी की तरफ जा रहे हैं और मायूस हो चुके हैं, कारोबार भी ठिप हो चुके हैं, जिंदगी भी का पैर भी जाम हो चुका है, रख चुका है, और फिर आज अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल सिर्फ एक ही बार करके देखें, फिर कैसे आपकी किस्मत बदलती है। इस बात का तसव्वुर भी आपने कभी नहीं किया होगा। तो जिन लोगों की दुआओं में बरकत नहीं है, दुआओं की कबूलियत नहीं है, वो इस अमल की बरकत से मुस्तजाबुद्दावा बन जाते हैं। मुस्तजाबुद्दावा इस बंदे को कहा जाता है जिसकी दुआ अल्लाह हर हाल में कबूल फरमा लेता है। तो जो शख्स चाहता है उसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, तो फौरी तौर पर आज ही के दिन इस अमल को एक मर्तबा करके देखे। इंशाअल्लाह हर हाजत अल्लाह उसकी बगैर मांगे ही पूरी फरमा देता है। आपने सूरह अल इखलास को पहले पढ़ना है, अल्लाहुस समद को बाद में पढ़ना है। अब सबसे पहले बावजूद अदब के साथ आपने बैठ जाना है, इसी तरतीब के मुताबिक जैसे मैंने कहा, कबला की जानिब मन्ना करके बावजू होकर। और ये सारी चीजें वजीफे के अंदर शामिल होती हैं, और बहुत सारे लोग बस इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और वीडियो को स्किप करके देखते हैं, और फिर वो न सही अमल को कर पाते हैं, न ही उसके फैज़ व बरकत को हासिल कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद अगर अमल को किया जाए तो फिर अमल के अंदर 100% कामयाबी मिलती है। अगर हम कुछ चीजें सुनकर और बस इतना समझ लें, बस अल्लाहुस समद पढ़ना है और सूरह अल इखलास पढ़नी है, आगे किसी बात का पता ही नहीं, और फिर वो अपनी मर्जी से करते रहते हैं, फिर बाद में शकवे शिकायत करते हैं कि हमारे तो वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, तासीर नहीं है। जब तक आप वजीफे को देखें, एक चाबी होती है, अगर उसको ताले में लगाया जाए तो उसका एक दंदा भी कम हो जाए तो ताला नहीं खुलता, और फिर उसी तरह अगर वजीफे की एक शर्त को भी छोड़ दिया जाए, अमल न किया जाए, तो इसी तरह फिर उस वजीफे से भी आपके नसीब का ताला भी नहीं खुलेगा। इसी सूरत में नसीब का ताला खुले जब आप इस अमल को इसकी शराइत और कवायद और जवाबित के मुताबिक पूरा करेंगे। तो आपने इसी तरतीब के मुताबिक बैठकर सबसे पहले हुजूर सरूर कौनैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात इक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखें, हफ्ते के दिन भी 7 हैं और काबा के चुक्र भी 7 हैं, जो तवाफ किया जाता है इसके चुक्कर भी 7 हैं। हफ्ते के अंदर दिन भी 7 होते हैं, जमीनें भी 7, आसमान भी 7 हैं। तो 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी में नूर है, बरकत है, रहमत है, और दरूद इब्राहिमी कबूलियत का मदार है। जिस अमल से पहले बाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, उस अमल को अल्लाह कबूल करता है, और वो अमल कबूल होता है और अमल महबूब होता है। बहुत बाबरकत वजीफा है ये वजीफा। नेक लोगों को, नेक दोस्तों को करीब करता है और बड़े दोस्तों को दूर करता है। वो दोस्त इंसानों की शक्ल में हो या जन्नत की शक्ल में हो, और वो दोस्त फरिश्तों की शक्ल में हो। फरिश्ते दोस्त बन जाते हैं, करीब आते हैं और साथ देते हैं, मावनत करते हैं अल्लाह के अम्र से, और साथी बनते हैं। हिफाजत का निज़ाम, गैबी निज़ाम मुतवज्जा होता है उस दरूद पाक के पढ़ने वाले के साथ। और ये वो दरूद पाक तो है जो नमाज का हिस्सा है और मकबूल व महबूब दरूद है। उसके अंदर हिफाजत भी है, किफायत भी है, कफालत भी है और गैबी मदद भी है। बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब खत्म करता है तो वो एक नूर का समंदर बन जाता है, जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा है। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सुरूर है, सुकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो इस दरूद पाक को आपने 7 बार पढ़ना है, और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ये आपने इस तरतीब के मुताबिक आपने सूरह अल इखलास को पढ़ना है। मतलब किया है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी पढ़ना है और सूरह अल इखलास को भी आपने इसी तरह ही पढ़ना होगा। और मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, तादाद में मैं बताता हूं कि कितनी तादाद में आपने पढ़ना है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। देखें, हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि ए कलीमुल्लाह, मैंने इम्त मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 नाम अता फरमाए हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए खुदा, वो कौन से 3 नाम हैं? रब ताला ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह रहमान रहीम। इस मजलिस में एक नाबीना शख्स बैठा हुआ था। इसने अल्लाह की बारगाह में फौरन इन
तीन नामों की बरकत तलब की। बारी ताला, इन तीन नामों की बरकत से जो तूने एमत मोहम्मदिया को अता फरमाए हैं, मुझे उनकी बरकत से तो बिनाई अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फौरन इस बंदे को बिनाई अता फरमा दी। तो अब आपको समझ आ गई कि बिस्मिल्लाह का ताल्लुक कितना ज्यादा जरूरी है और किस कदर दुआओं की कबूलियत इन अस्मा के साथ होती है। इसलिए आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर आपने सूरह अल इखलास शरीफ को पढ़ना होगा और उसके बाद आपने अल्लाहुस समद, ये भी सूरत अल इखलास की आयत है, एक मुकम्मल आयत है। ये कौन सी है? दूसरी आयत है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद। सूरह अल इखलास को अलग से पढ़ा जाएगा और अल्लाहुस समद का वर्द अलग से किया जाएगा। तो ये बात उसमें बड़ी अहम है। और दूसरी बात एक वाज़ेह करता चलूं कि हमारी एक खुसूसी दुआ होती है। जो बंदा इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे। इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर बेजरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत है और सूरह अल इखलास की बड़ी बरकत है। और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, अगर खुलूस नियत के साथ आज ये अमल आप कर लेते हैं तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये मुशाहिदा किया है, उन्होंने ये चीज देखी है, उनके तजर्बे में है और लोगों को उन्होंने उस अमल के जरिए कामयाब होते हुए देखा है। तो वो फरमाते हैं, जो अल्लाह से खुलूस नियत से मांगे, वो मादी हो या रूहानी मामला हो, उसको जरूर मिलकर रहता है। और मैंने सूरह अल इखलास का जिक्र करते हुए देखा है, वो जो सूरह अल इखलास को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनमें ऐसी बुजुर्गी पैदा फरमाता है, ऐसी पाकीज़गी पर कायम रखता है और अपने शाबे में कामयाब तरीन वो शख्स बन जाता है। एक बार एक बैनक अफसर को ये अमल करने के लिए कहा गया। वो इस वक्त सख्त परेशान था। इसके बकूल उसने अभी सिर्फ एक ही दिन या 3 दिन से ज्यादा उसने अमल नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उसका मसला हल फरमा दिया। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में फर्स्ट आना चाहता था, उसने उस अमल को किया। वो इम्तिहान के अंदर फर्स्ट आया, पहली पोजीशन उसने हासिल कर ली। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इस पूरी सूरत को सिर्फ 10 बार पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करवाएगा। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवाएंगे। यानी कि जब हुजूर ने ये बात कही तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला इन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन इससे भी ज्यादा, इससे भी अच्छा देने वाला है। यानी कि आप तो महल एक की बात करते हैं, अल्लाह उससे भी कई गुना ज्यादा तुम्हें इज्र व सवाब अता फरमाएगा, कई महल अता फरमाएगा। तो ये जन्नत में भी महल मिलते हैं, दुनिया में भी अल्लाह इसको महल अता फरमाता है। तो आपने सूरत अल इखलास, ये बड़ा खास अमल है। ये कोई मैं अपना अमल नहीं बता रहा, अपने पास से नहीं, बल्कि अल्लाह वालों का बताया हुआ। तो सबसे पहले सूरत अल इखलास को पढ़कर देखिए। अमल थोड़ा सा लंबा भी हो, ज्यादा भी हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 24 घंटों में से आप कोई 10-15 मिनट निकालकर इस अमल को कर लेंगे तो उसके पढ़ने से तमाम बीमारियों से, तमाम अदावतों से, जो दुश्मनियां हैं रोज रोज की, दुश्मन परेशान करते हैं, जो तंग करते हैं, उन तमाम चीजों से आप महफूज रहने लग जाएंगे। अगर घर के अंदर बेसुकूनी है, बेचैनी है, इंशाअल्लाह घर के अंदर सुकून आ जाएगा। घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान अगर मामलात डिस्टर्ब हैं, खराब हैं, तो मियाँ बीवी के दरमियान भी अल्लाह इस अमल की बरकत से मोहब्बत पैदा फरमा देता है, रिश्तों में खुलूस व इखलास पैदा हो जाता है। और उसी तरह इस अमल की बरकत से कारोबार खूब बढ़ जाते हैं, तरक्की मिलती है। और जो सूरह अल इखलास का ये वजीफा करता है, उसे जिंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। और ये एक बहुत बड़े पीर का, बड़े वली अल्लाह का बताया हुआ अमल है, और ऐसा अमल कि जिसके करने से इंसान की जिंदगी को 4 चांद लग जाते हैं। तो इसी तरह सूरह अल इखलास को आपने आज के दिन सिर्फ और सिर्फ उसकी 3 तस्बीह पढ़ के देख लें, सिर्फ 3 तस्बीह। और उसके बाद आपने करना किया है अव्वल व आखिर दरूद पाक और 3 तस्बीह। 3 तस्बीह को ज्यादा अमल तो नहीं है, आपके तकरीबन ज्यादा से ज्यादा भी लगे तो 15-20 मिनट का ये अमल है। लेकिन जो लोग आपको चंद सेकंड का अमल बताते हैं, इससे बेहतर है कि आप 10-15 मिनट आज दें, ताकि कामयाबी मिल जाए। 1-2 मिनट वाले अमल से तो आपको पता ही है, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं और आपको मिल रही है, लेकिन ये चंद मिनटों का अमल है और ये हकीकतन 100% मुजर्रब तरीन, आजमूदा, कई बार आजमाया जा चुका है उस अमल को। और इस अमल की इतनी बरकत है कि सिर्फ एक बार ही करने से हर बड़े से बड़ा मसला इस बंदे का हल हो जाता है। कारोबार में खूब बरकत पैदा हो जाती है, कभी जेब पैसों से खाली नहीं होगी और दुनिया के मकर व फरेब से भी आप हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 3 तस्बीह से मुराद। तो आप समझ गए होंगे ना, एक तस्बीह से मुराद 100 बार होता है, 3 तस्बीह से मुराद 300 बार होता है। कि ये खास अमल है, ये बात जहन में रखिएगा। ये अमल आजमूदा भी है, इस अमल के जरिए हालात भी कई लोगों के बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां भी बदली हैं। अगर आप 300 बार कोई शख्स नहीं पढ़ सकता तो कम इज कम 100 बार, यानी कि एक तस्बीह जो 300 बार पढ़ना, इसमें सिर्फ शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और अगर कोई उसको 100 बार पढ़ेगा तो वो हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा। अब दोनों तरीके कार मैंने बता दिए हैं, दोनों अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, दोनों ही कामयाब हैं। ये मत समझिएगा कि शायद एक कामयाब है दूसरा कामयाब नहीं है, दोनों ही कामयाब हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 100 बार पढ़ें तो हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, 300 बार पढ़ें तो सिर्फ शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें। बाकी तरतीब और तरीका वही है जो हम शुरू से लेकर अब तक आपको बता रहे हैं।
है। अब आपने इस अमल के बाद करना क्या है, पानी के ऊपर दम कर लें। जो बच्चे पढ़ते उनको पलाएं, इंशाअल्लाह वो पढ़ने लग जाएंगे। और जो जिनको सबक नहीं याद होता उनको पलाएं, सबक याद करने लग जाएंगे। और वही बच्चे जो जद्दी हैं उनको पलाएं, वो जद छोड़ देंगे। जो इम्तिहान में फर्स्ट आना चाहता है या घर के अंदर जो बीमार है उसको पिलाएं, अल्लाह शफा अता फरमा देगा। लाखों परेशानियां इस एक ही अमल से दूर हो जाती हैं। और अगर कोई एक शख्स भी इस अमल को कर ले, रब की बारगाह से लाखों नहीं करोड़ों भी मांगेगा तो मेरा रब उसको अपने खजाना गैब से जरूर बेजरूर अता फरमा देता है। अब अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये वो इस्म पाक है जिसके जरिए से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को नवाजता है। तो आज जो भी शख्स अपने आप को अल्लाह की बारगाह से नवाजना चाहता है उसको चाहिए कि इस अमल को लाजमी तौर पर आज के दिन करके देखे। इंशाअल्लाह रब की रहमतें खूब बरसने शुरू हो जाती हैं। अब जो बंदा हमेशा की तंगी से बचना चाहता है, महताजी से बचना चाहता है और हमेशा के लिए कामयाबी हासिल करना चाहता है, इस बंदे को चाहिए कि इस अमल को हरगुज न छोड़े। उसके बाद अल्लाहुल समद ये खासकर इल्म में इजाफे, रोजगार में इजाफे, आमदन में इजाफे और हर एक चीज के इजाफे के लिए उस अमल को किया जाता है। और आपने ये इस्म पाक पढ़ना। इस तरह सिर्फ सूरतुल इखलास को जब मुकम्मल कर लें उसके बाद अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद उसको अपने हाथ की इंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने उसकी भी 3 तस्बीह पढ़नी है। 3 तस्बीह पढ़ते हुए 3 मिनट लगते हैं। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद कितने मिनट? 3 मिनट लगते हैं। और सूरह इखलास पढ़ते हुए सिर्फ 5, 10, 15 मिनट लगते हैं। तो ये टोटल 10-12 मिनट का अमल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और वैसे भी सूरह इखलास वो सूरत है जिसको एक बार पढ़ें तो अल्लाह 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है। तो फिर आपको अंदाजा है कि उस एक ही अमल से आपकी जिंदगी को कैसे 4 चांद लगते हैं, कैसे जिंदगी रोशन और मनवर होती है। इसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह ताली फिर देखिएगा रब कहां से किस किस खजाने से तुम्हें माल व दौलत अता फरमाता है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बन मांगे अता फरमाए। अपने रिज्क में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह नगहबान।